Hello everyone, I welcome you all to IRC Chemistry. Today I am back again with a question and answer session. आप सभी लोगों ने टेलीग्राम पे अपने डाउट्स पोस्ट किए थे. So today I am here with the answers of all those queries. टेलीग्राम से जितने भी डाउट्स थे सारे मैंने जोट डाउन किए एंड वट एवर जनरल क्वेश्चंस आई फाउंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एंड फॉर दोज जिन्होंने टेलीग्राम का लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो प्लीज click on that link and join the IRC chemistry group for more guidance. So let's start with this session. First we will discuss the first जो doubt and maximum asked doubt I found is UPSC geochemist की training कैसी होती है. So let me tell you guys, the training for UPSC geoscientist specifically for chemist is very interesting and you are going to enjoy it a lot. The training duration is 4.5 months and there will be different modules it will be divided into. First there will be fundamental or foundation module जिसमें आप सभी को sanitize किया जाएगा with the service rules. Because you are selected as you will be selected as Group A gazetted officer in Ministry of Mines Department as a chemist. So there definitely a need of service rules knowledge. So within 1 month this foundation module will go and in that module service rules के बारे में और जो भी departmental rules and regulations वो आप सभी को बताए जाएंगे. Then there will be next module that will be geology module because you are going to work in geological survey of India, so you need to have knowledge of geology. So there will be geology module जिसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को geology पढ़ाया जाएगा. Then it will be next will be your field module. Now since you are you are working in a geological institute, so उसमें आपको कुछ field module भी करना पड़ेगा. चित्रदुर्ग में आप जाएंगे फ्रॉम हैदराबाद, यू विल बी गोइंग टू चित्रदुर्ग फॉर द फील्ड मॉड्यूल. वहाँ पे फॉर 15 days देयर विल बी फील्ड मॉड्यूल एंड लेट मी टेल यू दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू हैव. नेक्स्ट देयर विल बी केमिकल मॉड्यूल एंड वेट केमिकल एनालिसिस मॉड्यूल दैट विल बी इन नागपुर. सो इन होल 4.5 months ट्रेनिंग आप लोग नागपुर जाएंगे, चित्रदुर्ग जाएंगे and you will have a lot of exposure of geology as well. So the training 4.5 months is going to be one of the best experience of your life. For me it was one of the best experience I had in my life and in that training of 4.5 months आप ऐसे दोस्त बनाएंगे that will be for your life, for lifelong they will be going to be friends with you. So this is all about the training एंड जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे आपको कॉल लेटर आएगा, यू विल बी ज्वाइनिंग इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा उसमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. आपके आसपास दोस्त आपके आसपास रहेंगे, साथ में रहेंगे एंड इट इज़ वेल एक्यूप्ड. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय द ट्रेनिंग. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दैट विल बी हेक्टिक ट्रेनिंग, वेरी इजी एंड इजी गोइंग एंड एंजॉयबल ट्रेनिंग देयर विल बी. नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज सैलरी एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ जियो साइंटिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो गाइज सैलरी की अगर मैं बात करूं, इट विल बी 56,100 विल बी योर बेसिक सैलरी. ओवर दैट अकॉर्डिंगली यू विल गेट DA and HRA. If you are posted in X class city, then your HRA will be 30% and your DA will be 50% as per now. And so आप calculate कर सकते हैं 56,100 का 30% as well as 50% इन सभी को जोड़ के with you will also get transport allowance that will be around 10,000. So your salary will be very handsome. It will be around it will be more than 1 lakh, 1,10,000 and something like that. You can calculate. This is the first salary you are going to get. Let me tell you, when you are going to appear in the training, then training में आपको जो HRA है वो नहीं मिलेगा because training is going to give you stay. तो वहाँ पे आपको HRA नहीं मिलने वाला है, तो HRA माइनस करके जो भी है आपको मिलेगा. So this is about salary
And lifestyle is very good lifestyle you can lead in GSI. Being in scientist in GSI, you will have ample amount of time for your own personal life, because Saturday Sunday बिल्कुल ऑफ रहेगा. And also in office hours आपको टारगेट मिलेगा. If you will be doing that target, then there is no much headache is also there. आपको एक टारगेट मिलेगा, एक टाइम लिमिट रहेगी आपके पास. उस टाइम लिमिट में आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना है, अचीव करना है. ऑब्वियसली ऑफिस में अगर आप रहेंगे तो कुछ एडिशनल वर्क भी आपको असाइन हो सकता है. So that is also not very difficult. That is quite easy and easily you can do, and the life will be very soothing. Next most asked question I have found on the Telegram channel is that seats for UPSC geochemist recruitment are decreasing day by day. क्या recruitment stop हो जाएगा? Now ये question जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट मी टेल यू, जो सैंक्शनड पोस्ट हैं इन GSI फॉर केमिस्ट इज 250, एंड आउट ऑफ दैट अराउंड 170 पोस्ट आर फिल्ड. अभी 170 में से मैंने जो रिसेंट बैच जिसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई उनको भी काउंट किया है. सो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग ज्वाइन करें, कुछ ना करें. और ये सिर्फ गैप मैं बता रहा हूँ. 170 पोस्टेड हैं, रिक्रूटेड हैं, 250 इज रिक्वायर्ड. अब ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत कम नंबर है, 50-60 ओनली पोस्ट आर वैकेंट. ऐसा नहीं है. जो हायरिटीज में जो हायर वैकेंसीज में जब लोग रिटायर होंगे, प्रमोशंस होंगे, सो दैट वैकेंसी अगेन इट विल क्रिएट. सो रिक्रूटमेंट होती रहेगी. बस आपको क्या करना है, यू हैव टू बी स्टे फोकस्ड एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग. दिस इज माई सजेशन. आपको कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर मेनी अदर एग्जामिनेशंस. बस ये कि इफ यू आर गिविंग GSI एग्जाम देन स्टे फोकस्ड फॉर दैट. ठीक है, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है. एंड लेट मी टेल यू, रिक्रूटमेंट्स कंटिन्यू रहेंगी. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कीप ऑन प्रिपेयरिंग. अगला जो क्वेश्चन है वो आता है अबाउट दी कोचिंग फॉर GSI UPSC जियोकेमिस्ट एग्जामिनेशन. सो लेट मी टेल यू, कोचिंग बहुत कम लोग कोचिंग लेते हैं GSI की, बिकॉज पूरा डिस्क्रिप्टिव है. आपको खुद ही पूरा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा कोचिंग कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं ऑनलाइन. बट येस, देर इज़ वन कोर्स फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय सहेंद्र सर. मैंने अपने टाइम पे लिया था, बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पाया था उसको. ठीक है, तो आप वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं सहेंद्र सर के द्वारा, एनालिटिकल केमिस्ट्री. बिकॉज एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज योर जॉब प्रोफाइल विल बी लाइक एन एनालिस्ट. आपको क्या करना होगा, सैंपल्स आपके पास आएंगे, आपको एनालिसिस करना होगा. सो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. सो जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है आप वहाँ से देख सकते हो. इवन जो बुक्स हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. ऑल आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियोस, जो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा. नेक्स्ट जो है फुल फ्लेजेड कोचिंग, आई गेस केम एकेडमी. मैंने सर्च किया, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे पता नहीं था, बट देन आई फाउंड कि केम एकेडमी एक कोर्स लॉन्च किया है केम एकेडमी ने फॉर UPSC जियो साइंटिस्ट. अभी मैं उसको रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा अपने एंड से. दिस वोंट बी एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, जस्ट आई एम लेटिंग यू नो कि एक कोचिंग है. आप क्लासेस वगैरह लेके देख सकते हैं. इफ़ यू विल फाइंड इट good for you, then definitely you can join. Otherwise it's up to you. This is no such kind of recommendation from my side. So this is about coaching, and then also there are questions about mock tests. ठीक है, so because exam 3 stage में हो रहा है, prelims, mains and interview. So before going to main examination, mock test बहुत important हो जाता है. ठीक है, so I would suggest if they are providing mock test, then केम एकेडमी के mock test तो आप ले ही सकते हैं, या जो भी प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज यू वांट टू डू सम राइटिंग प्रैक्टिस एंड MCQ क्वेश्चंस के लिए प्रीलिम्स में यू वांट प्रैक्टिस, तो उसके लिए आप कर सकते हो. ठीक है, ओवर एंड अबव मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अगर लिख के प्रैक्टिस करते हैं, इफ़ यू आर एस्पिरेंट फॉर मेंस, यू आर राइटिंग मेंस, तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं आप उन्हीं को लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट रेदर देन
कोई नए क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये लगता है कि नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, नया कुछ भी नहीं रहेगा, सिलेबस पूरा आपको पता है, सब इजी रहेगा, जस्ट आपको एक अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। सिमिलरली इन प्रीलिम्स आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी है, बिकॉज इन प्रीलिम्स यू विल हैव 120 क्वेश्चंस फॉर 300 मार्क्स फॉर 2 आवर्स। सो आपको उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है और स्पीड को मेंटेन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैम के, आईआईटी जेई मेंस के, ठीक है, देन आपका जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के जो आ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, देन नेट के जो 2 मार्कर्स हैं या जो गेट के जो 2 मार्कर्स हैं या 1 मार्कर्स हैं, वो आप क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये जरूर देख लेना कि टॉपिक सिलेबस में है या नहीं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट मेंस आंसर राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा, बट इन दिस वीडियो ऑल्सो अगर आप काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, सो आई वॉन्ट टू टेल कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मेंस आंसर राइटिंग में, देखो आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन में मान लो 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 1 पेज दिया जाएगा पूरा, 1 फुल पेज फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन। फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन 2 पेजेस दिए जाएंगे, फॉर 15 मार्कर क्वेश्चन 3 पेजेस दिए जाएंगे। अब आपके पास एक प्रॉपर गिवन स्पेस है ना, आपको 3 पेज दिए तो आपको 3 पेज करने हैं उसमें, या आपको 1 पेज दिया है तो उसी पेज में आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करना है। तो इसलिए क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसी चीज़ की वजह से। तो आपको करना क्या है, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक 10 मार्कर का एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। लेट्स से आपको आया है कोई भी क्वेश्चन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ये क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ा होगा, गैसियस का वेरी फेमस क्वेश्चन है। आउट ऑफ 100 90% स्टूडेंट, 95 को इसका आंसर, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आता होगा। नाउ लेट मी टेल यू, आउट ऑफ 100 बहुत कम लोग होंगे जो उसको बहुत अच्छे से 3 पेज में डिलीवर कर पाएंगे, या 2 पेज में जो हमारा है डिलीवर कर पाएंगे। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इंट्रोडक्शन देना है कि होता क्या है, फिर आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, फिर उस पर प्रॉपर लेबलिंग करनी है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, आपको ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ पे डिफरेंट वेलोसिटीज को मेंशन करना है, ठीक है। फिर जो डिफरेंट वेलोसिटीज मेंशन की हैं उनको लिख के, जैसे URMS है तो दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, लाइक दैट यू कैन मेंशन देम, ठीक है। तो इट शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, क्लियर। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट, जो एक्सप्लेन कर दिया हमने पूरा अच्छे से, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, आप मतलब एक पैरा टाइप करके नीचे लिख सकते हैं। सो ये आपने एक्सप्लेन किया पूरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर जो कोर पॉइंट आया लास्ट में एक पैराग्राफ टाइप करके एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्चुअली इज। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे बताएंगे भाई, आपको पता है कि टेम्परेचर जब मैं बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन मेरी हायर वेलोसिटीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे, उस कर्व को प्रॉपरली लेबल करेंगे, ठीक है। जो मार्क्स होते हैं वो किसके, प्रॉपर डायग्राम के, प्रॉपर लेबलिंग के, एज वेल एज अगर जो आप फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं उसके, ठीक है, आप अच्छे से उसको कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के, ये इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप देखो, ट्राई करो कि उसमें अगर कोई डायग्राम फिट हो रही है तो बना दो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक्सप्लेन करने में आपको भी आसानी होगी, आप कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आंसर राइटिंग का ही है। जैसे कि मान लो मेरे को कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, पीएच का क्वेश्चन है, पीएच निकालना है, मेरे को कोई भी सॉल्ट दे दिया, मान लो अमोनियम क्लोराइड दे दिया। अमोनियम क्लोराइड के लिए मेरे को इसकी पानी में मैंने डाला तो उसका पीएच कितना होगा वो बताना है। अब हमें पता है एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, पीएच इज इक्वल्स टू पीके माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन जो भी है कॉन्जुगेटेड एसिड, वो एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन में सारे पैरामीटर्स मुझे गिवन है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको 10 नंबर में एक्सप्लेन करना है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आएगी,
आपके पास सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस हैं और इक्वेशन है। अब करने को तो मैं एक लाइन में वो इक्वेशन मैं लिखूंगा, दूसरी लाइन में मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तीसरी लाइन में मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा इन 2 पेजेस, ये भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है आंसर राइटिंग में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप इक्वेशन लिखो, उस इक्वेशन को एक्सप्लेन करो थोड़ा, उसमें जो जो वेरिएबल्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन इन द सेंस, मान लो जो भी कंसंट्रेशन है उसको डैश करके एक लिख दो लाइन में। इस तरीके से पहले पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन करो, फिर जो जो गिवन है वो लिखो, फिर उसको इक्वेशन में डालो, फिर उसको आंसर लिखो, और फिर अगर नीचे कुछ कंक्लूजन पूछा हुआ है या आपका कुछ कंक्लूजन निकलता है तो वो लिख दो। इस तरीके से आप पूरा उसको कवर कर सकते हो। हाँ, अगर आप टू द पॉइंट जाएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मुझे टू द पॉइंट आंसर करना है, मैं आधे पेज में करके खत्म कर दूंगा, आंसर मेरे को आंसर पूरे मार्क्स मिलेंगे, सो लेट मी टेल यू, आपको नहीं मिलेंगे। यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज जो आपको गिवन स्पेस है, जो आपको गिवन पेजेस हैं, वो आपको पूरा करना है। अगर आप ये करेंगे कि आप गए और आपने सीधा टू द पॉइंट लिखा और आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, सो दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू पॉसिबल। आपको उसमें 10 में से 5 नंबर पर रोक देगा, जो कि क्वेश्चन आपको अच्छा आता था अच्छे से, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने लंबा खींच दिया। अगेन आंसर राइटिंग की एक डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगा विद माय ओन रिटन आंसर्स फॉर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट। मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी, मैंने जो प्रीवियस ईयर्स थे वो निकाल के फुल 3 आवर्स बैठ के 2-3 पेपर लिखे थे, उससे मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ नाउ आई कैन मैनेज कि एग्जाम में कैसे लिखना है। क्लियर? ये तो था हमारा अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी हैं कि सिलेबस फॉर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एंड नेट गेट वो सेम है या नहीं है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, आई वुड हाईली रिकमेंड हिम कि साइट पे जाओ, दोनों के सिलेबस निकालो एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो लेट मी टेल यू, जो कोर टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे, कोर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे। जो डिफरेंस रहेगा, कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं वो हमारे इसमें नहीं होते इस एग्जाम में, दूसरे में, जैसे बायो इनऑर्गेनिक है, नेट में आती है बहुत अच्छी खासी, लेकिन हमारे जीएसआई एग्जाम में नहीं आती है। सिमिलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री जीएसआई में बहुत आती है, नेट के एग्जाम में उतना नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन हार्डली आते हैं। तो ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, दोनों सिलेबस लेके बैठिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। कोर टॉपिक्स जैसे थर्मो हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, वो सब सेम है, ठीक है। जो डिफरेंस विल बी ओनली वेरी, जो छोटे छोटे टॉपिक, 2-4 टॉपिक जो साइड वाइज हर एग्जाम में स्पेसिफिकली अलग से ऐड किए जाते हैं, तो आपको उस चीज को देख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पोस्ट किए थे। नाउ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि सर लास्ट 20 to 25 डेज या फिर लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या रहेगी। सो गाइज लेट मी टेल यू, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड की है कि लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप उसको देख सकें। नेक्स्ट प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी, वो वीडियो भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई वुड रिकमेंड देम कि आप मेरे चैनल पे जाकर के जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की एक प्लेलिस्ट है उसमें जाएं। अदरवाइज आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट। मेंस की जो स्ट्रेटजी है उसकी भी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आई वुड रिकमेंड टू यू डेफिनेटली वॉच दैट। ऑल्सो कुछ डाउट्स इंटरव्यू के लिए हैं, फॉर इंटरव्यू ऑल्सो आई हैव अपलोडेड। इन सभी वीडियोस की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन ईजिली वॉच देम एंड इफ यू विल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन। नेक्स्ट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन आस्क योर ओन क्वेरीज, योर डाउट्स एंड वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग while preparing this exam. So this is all for me. Please do like, share and subscribe and stay connected, stay tuned with IRC Chemistry. Thank you.